and how to expand that in terms of pointers. Yeah. So 3D array. So let's suppose I have declared an array int in 2, 2, 3. So first thing, tell me guys, what will be the total number of elements in this case? 12, sir. Bingo, 12. So 12. So, right, this 12. So if this is M, this is N, and this is O, how will you define programmatically that what is M? Number of 2D arrays. Bingo. See, अगर मैं बात करता 1D array की, 1D में 2 means number of element. When I talk about 2D array, M means number of 1D array, and this is 3D array. So M means number of 2D array. And what do you mean by N? Number of 1D array in every 2D array. 1D array. Bingo. Number of 1D array in each 2D array. And what is O? Number of elements in every 1D array of 2D Bingo. Number of elements in each 1D array. Fine. So total number of element in this case will be 12. तो मैंने elements लिख लिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 and 120. ये 12 elements हो गया. ठीक है? कोई doubt अभी तक? No, sir. Now what I'm going to do, tell me how many 2D element 2D arrays है? How many 2D? 2 2D, sir. 2. 2D. So अगर मेरे को, let's suppose if I want to draw a vertical line just to distinguish it is my 0th 2D and my first 2D, मैं कौन से element के बाद एक vertical line draw करूँ? 60, sir. 60. After 60 hide कर लूँ. Yes. Yes, If you sir. want to hide this, every 2D consists of 2 1D and each 1D consists of 6 element, 3 element. So 2 into 3, 6. Yani after 6 element, first, second, third, fourth, fifth, sixth, you draw a vertical line. Yeah, I'm doing this to explain you guys. So this is your 0th 2D array, and this one is your first 2D. बोलो बेटा किसी को कोई डाउट हो तो, जिसको आ गया उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोबारा समझाओ. Having any doubt? सर एक बार दोबारा से बता दीजिए. बिल्कुल, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ. See, this 3D array consists of 2 2D and each 2D consists of 2 1D and each 1D consists of 3 element. तो मेरे पास 2 2D array है. हर 2D के अंदर मेरे पास 2 1D है और हर 1D के अंदर there are 3 element. So after the 6th element, because अगर मैं इसको hide करूँ, अगर मैं number of 2D को hide करूँ तो हर 2D के अंदर कितने element हो गए? 2 into 3, यानी कि दो हर 2D there is 2 1D and each 1D consists of 3 element. So there will be total of 6 element in a 2D array. बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है. तो अब मेरे को ये बताओ, अगर इस 0th 2D के अंदर if I want to draw a vertical line just to distinguish that it is my 0th 1D and this is my first 1D, मैं कौन से element के बाद एक vertical line draw करूंगा? 30 के बाद, sir. After 30 मैंने vertical line draw करी. So this is my 0th 1D. This is 0th 1D and this is my first 1D. ठीक है. Similarly यहाँ पे 90. So this is your 0th 1D and this is your first 1D. ठीक है. And each 1D consists of, हाँ मिले बोलो. सर 0th 1D क्या होता है सर? 0th 1D. बेटा हम हमेशा ना इंडेक्स को 0 से स्टार्ट करते हैं एरे के केस में. ठीक है. हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है. तो ये 0 2D है, ये n है, ये आपका नंबर ऑफ 1D है. दिस O इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच 1D. मैं दोबारा रिपीट करूं, दिस इज अ 3D array. 3D array consists of 2D array. 2D array consists of 1D array and 1D array consists of element. तो ये 3D array जो है इसके अंदर जो m है वो है नंबर ऑफ 2D array. तो इसके अंदर दो 2D array है. इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है. सो 0th 2D एंड फर्स्ट 2D. ठीक है. आफ्टर 60 वर्टिकल लाइन ड्रॉ क्यों करी? बिकॉज तुम खुद देखो यार, मेरे पास दो 2D है.
हर 2D के अंदर 2 1D है, हर 1D के अंदर 3 एलिमेंट है। तो मेरे पास एक 2D के अंदर कितने एलिमेंट हो गए? 2 into 3 6 एलिमेंट हो गए। फिर मैंने इसको फर्दर डिवाइड किया इन 6 एलिमेंट्स को, बिकॉज मेरे पास इन 6 एलिमेंट्स में देयर आर हाउ मेनी 1D? देयर आर 2 1D, 0th 1D एंड फर्स्ट 1D, एंड ईच 1D कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट? 3 एलिमेंट। मैंने 30 के बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, 0th 1D फर्स्ट 1D, 0th 1D फर्स्ट 1D, और ये कौन सा एलिमेंट हुआ? 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, 0th एलिमेंट। हाँ बेटा बोलो। सर आपने जो 60 के बाद जो वर्टिकल लाइन दी उसमें जो 0th 1D लिखा है उसको सर आपने सेकंड 1D क्यों नहीं लिखा? बेटा मैं देखो, सेकंड 1D का मतलब क्या होता है? सेकंड 1D का मतलब होता ये मेरी फर्स्ट 2D है। तुम ये 2 क्या डिनोट करता है? जो मैं पूछ रहा हूँ वो बोलते जाओ। ये 2 डिनोट क्या करता है? नंबर ऑफ 2D एरेज। नंबर ऑफ 2D। और मेरे पास कितनी 2D एरे है? मेरे पास 2 2D एरे, ठीक है, कोई डाउट? Now in each 2D, this 2 denote number of 1D. हर 2D के पास कितनी 1D है? हर 2D एरे के पास कितनी 1D एरे? 2 1D एरे, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट 0th 2D था, ये मेरा फर्स्ट 2D था। इसके पास भी 2 1D है, इसके पास भी 2 1D है। तो जो एरे का इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। दिस इज माय 0th 1D, दिस इज माय फर्स्ट 1D, दिस कैन नॉट बी थर्ड 1D, ठीक है। इस खुद 2D के पास देयर आर जस्ट 2 1D एरे, एंड दैट इज 0th 1D एंड फर्स्ट 1D। एरे का इंडेक्स हम नॉर्मली वी ऑलवेज स्टार्ट विद 0. So if I assume that the address to start from 100, so this is 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140 and 144, ये मेरे एड्रेसेस हैं, ठीक है। These are my addresses. अब क्योंकि तुमने 2D ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन पे जंप करता हूं। मान लो सपोज इफ समबडी आस्क यू दैट टेल मी द वैल्यू ऑफ a 0 1 2, इस a 0 1 2 का मतलब क्या हो गया? आई एम टॉकिंग अबाउट द 0th 1D, I am talking about 0th 1D, and then I am talking about 0th 2D, then I am talking about first 1D of 0th 2D, then I am talking about second element of first 1D of 0th 2D. तुम्हें सबसे पहले क्या करना है? तुम्हें 0th 2D पे जाना है। तुम सीधे यहाँ पे आए, बोलो कोई डाउट? नो सर। ठीक है। देन नेक्स्ट इज 1, तुम डायरेक्ट कहाँ पे गए? तुम फर्स्ट 1D पे गए। देन व्हाट? सेकंड एलिमेंट। सो व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट? 60. तो मेरा आंसर आ गया 60. So let's suppose if I write something like this, that A2 2 3. Error sir. Error नहीं आएगा बेटा. It won't give you error. It will give you garbage value. Yes sir. ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? Second 2D, but I do not have the second 2D. I have till only first 2D. So this is basically will give you a garbage value. ठीक है, बिकॉज तुम उस एड्रेस की वैल्यू फेच करना चाहते हो जो एड्रेस इस एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैंने तुम्हें हमेशा बताया था कि जब मैं एरे डिक्लेयर करता हूँ और जब मैं प्रिंट कराता हूँ तो ये जो होता है ये हमेशा जो लास्ट एलिमेंट होगा दिस विल ऑलवेज बी साइज -1। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरे को 120 प्रिंट करना है तो तुम क्या बोलोगे? 120 लास्ट एलिमेंट है, तो मैं इसको लिखूंगा A1 1 और यहाँ पे क्या आएगा 2, यानी कि फर्स्ट 2D का फर्स्ट 1D का सेकंड एलिमेंट। तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 120, और ये आंसर क्या आएगा? गार्बेज वैल्यू। अब अगर तुम्हें पूछूं कि मेरे को आंसर बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 2 0, इसका आंसर क्या होगा? सर गार्बेज। सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पे 2 है तो प्रिंट करते हैं, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, तो इट विल बी ए गार्बेज वैल्यू। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, हाँ जी सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा सर। ये जो मैं लिखे हैं ये यस सर। ये ओके, जस्ट टेल मी वन थिंग, आपने इससे पहले के 2 लेक्चर्स अटेंड किए हैं? सर कल वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया था सर मैंने। कल वाला नहीं किया था ना, तो ओके देन देयर आई डिस्कस दिस 2D एरे। ठीक है, देखो यार अगर मैं लिखता हूँ A0 1 2 तो ये 0 डिनोट करता है मेरा 2D एरे, ये 1 डिनोट करता है मेरा 1D एरे, ये 2 डिनोट करता है मेरा एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 0th 2D का फर्स्ट 1D
का सेकंड एलिमेंट। तो 0th 2D का फर्स्ट 1D का सेकंड एलिमेंट क्या हुआ मेरा 60। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं A112 तो इसका मतलब क्या हो गया फर्स्ट 2D, मैं फर्स्ट 2D पे आया, फर्स्ट 2D का फर्स्ट 1D मैं फर्स्ट 1D पे आया, फर्स्ट 1D का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट 1D का सेकंड एलिमेंट कितना है 120। बोलो कोई प्रॉब्लम? सर अगर मैं तुमसे पूछूं, मेरे को तुम ही आंसर बोलना बेटा, इफ आई राइट A101 टेल मी व्हाट इज द आंसर। सर एक सेकंड। 80। जिससे पूछा है बस वही 80। इट मींस A1 means first 2D, 0 means 0th 1D का first element is 80. But if I give you something like this A223, A2 means what? I am talking about the second 2D. But मेरे को बता बेटा कि यहाँ पे second 2D है, I have only 0th 2D and first 2D, तो ये exist ही नहीं करता ये element, so it will give you garbage value. बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब मैं अगर इसकी बात करूं दिस वन A1 means I am talking about first 2D, मैं first 2D पे पहुंच गया, this is what second 1D, but do I have the second 1D? नो सर। नो सर, तो ये भी गार्बेज वैल्यू देगा। अगर मैं तुमसे बोलता टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A113 तो आंसर क्या आता? 1 सर गार्बेज वैल्यू। तब भी गार्बेज वैल्यू आता, बिकॉज मेरे पास फर्स्ट 2D है, फर्स्ट 1D है, बट आई डू नॉट हैव द थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट तो है मेरे पास, आई हैव ओनली सेकंड एलिमेंट। ठीक है, तो नाउ व्हाट आई विल डू, नाउ द इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट। मैं एक बार इसको इरेज करता हूं। Now, in this case, these expressions are very, very, very important. Now, if I say A, if I say star A, if I say star A, if I say triple star A and A plus 1 star A plus 1 star A plus 1 and triple star A plus 1. सो नाउ स्टेप बाय स्टेप, और थोड़ा सा फोकस करना, जिनको 2D आ गया तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यू गोना टेल मी द आंसर एज वेल एज द डेफिनेशन आल्सो। फर्स्ट टेल मी वैल्यू ऑफ A। Base address of सर 0 100 to 2D. 100 होगा सर 100। 100। This is 100 is correct, but let's suppose if I ask you what will be the definition of this A, how will you define this A? सर बेस एड्रेस ऑफ द 0 Base 2D address Base of address 0 of to 2D. 1D of 0. बेस एड्रेस ऑफ द 0 2D 2D का Bingo, होगा। bingo. अब अगर मैं तुमसे सपोज, मैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले 1D लेते हैं, फिर 2D लेते हैं, फिर 3D लेते हैं। अगर मैं 1D की बात करता हूँ, हाँ जी सर A इक्वल टू सर 100 कैसे है सर, समझ नहीं आया सर। मैं वही सब एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। ओके देखो जब मैं बात करता हूँ 0th 1D की, ठीक है, when I talking about base address of 0th 1D की मैं बात करता हूँ, या 1D array की मैं बात करता हूँ, and name of array is A, तो if I ask you what is A, how will you define A in case of 1D array? It is the base address of your 0th element, ठीक है, बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट। मैं लिख देता हूं, फिर भी अगर दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1D array, ठीक है, एंड इफ आई आस्क यू द डेफिनेशन ऑफ A, तो मेरी 1D array ये होती है, मान लो यहाँ पे एलिमेंट 10 है, यहाँ पे 20 है, इसका बेस एड्रेस 100 है, इसका 104 होगा। सो दिस इज योर A एंड दिस इज योर A plus 1, ठीक है। सो व्हेन आई से A क्या होता है? A कुछ नहीं होता, A होता है बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट, बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट। हम एलिमेंट के बेस एड्रेस की बात करते हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास 2D array होता है, तो तुम देखो, अगर मैं ये 1D का एग्जांपल, मैं इस एग्जांपल से लेता हूँ, ये मेरी 1D array है, इसके अंदर एलिमेंट है, तो ये जो है दिस इज योर A, इट इज बेस एड्रेस ऑफ द 0th एलिमेंट। अगर मैं 2D की बात करता हूं तो ये 2D है, तो ये क्या होता है A, अगर मैं बोलता हूं दिस इज योर A एंड दिस वन इज योर स्टार A, और ये अंदर वाली जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, ये आपकी स्टार A होती है। सिमिलरली 1D में अंदर वाली वैल्यू जो होती है हम कैसे एक्सेस करते हैं, एक स्टार से। ये मैंने तुम्हें बताया था, फॉर n डायमेंशनल एरे वी रिक्वायर n पॉइंटर्स टू एक्सेस द एलिमेंट।
बोलो कोई डाउट? तो जब मैं इन केस ऑफ 2D के केस में जो A होता है दैट इज व्हाट? इट इज द बेस एड्रेस ऑफ व्हाट? बेस एड्रेस ऑफ व्हाट? 0th 1D. 0th इट इज द बेस एड्रेस ऑफ 0th 1D. ये 1D का बेस एड्रेस होता है, बेस एड्रेस ऑफ 0th 1D. तो अगर मैं 3D की बात करूंगा, 3D के अंदर 2D है, 2D के अंदर 1D है, 1D के अंदर एलिमेंट है. तो जब मैं 3D की बात करूंगा, 3D में मेरा A क्या होगा? इट इज द बेस एड्रेस ऑफ 0th 2D. 2D और अगर मैं 4D एरे की बात करूंगा, जो मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, वहां पे A क्या होगा? A होगा बेस एड्रेस ऑफ 0th 3D. 3D. तो एक बार मैं फिर से इसको इरेज करता हूं बिकॉज मेरा क्वेश्चन दूसरा था जो अभी हम कर रहे हैं. एक सेकेंड गाइस. ओके ठीक है. तो A मेरा क्या हो गया इस केस में? इट इज द बेस एड्रेस ऑफ 0 2 2. It means I am talking about this complete. This complete, and the base address of this 0th 2D starts with what? 100. 100. Therefore, the value of A is 100. Now coming to star A. So this is A. I am noting down. This is A. ठीक है. Now what is star A? 100 ही होगा सर. 100 आएगा सर. 100 ही होगा, but definition wise, 100 Base address of the 0th 1D. that is base address of 0th element of 0th 2D. no, beta, this is not the base address Base of the address of 0th 1D of the 0th The 2D. base address of 0th 1D. base address of 0th 1D of 0th 2D. यानी कि it means I'm talking about this base address of 0th 1D of 0th 2D. यानी कि ये जो है, जो आपने ये इनर सर्कल बनाया है, this represent what? This represent your star A. ठीक है. Now tell me what is the value of star A? 100. Sir 100. Sir 100. 0th element क्यों Base ना? at 0th element of 0th Base address of 0th element of the 0th 1D of 0th 2D. बिल्कुल ठीक. It is the base address of 0th element of 0th 1D of 0th 2D. of 0th 1D of 0th 2D. 2D. यानी कि I'm talking about this base address of 0th element of 0th 1D of 0th 2D. तो ये जो होगा, ये मेरा क्या होगा? स्टार A होगा. ठीक है. Now coming on to triple star A, ये 10. क्या होगा? Sir 10. 10. और ये होगा value at the 0th element. base address of 0th element of 0th of 0th 2D. बिल्कुल ठीक बेटा. तो ये वैल्यू क्या आ गई? 10. Now tell me what will be the value 124. of A plus 1? 124. यार तुम तो एकदम छान हो बेटा. 124 is the correct answer. अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ why 124. देखो ध्यान से. Definition wise, if you ask me that sir what is A, I will say it is the base address of 0th 2D. तुम्हारा A यहाँ पे point कर रहा है, and this A is basically carrying this much of weightage. It is carrying this much of weightage. I hope you're getting what I'm telling you. This A is containing what? This is containing this entire set of things inside it. ठीक है. तो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हो गए? देखो, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, पांच एलिमेंट, छह एलिमेंट. एक एलिमेंट की साइज कितनी होती है? 4 by. The size of this element will be 24 bytes. So if you are at this position 100 and this is occupying this 24 bytes,
So a jump in this will directly move you to the base address of your first 2D. First 2D. And the base address of starts with 124. So it will be the address of your first 2D. बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, अपने आप को प्लीज म्यूट कर लो. एक सेकंड मैं ही कर लेता हूँ. यशस्वी यार, come on man, just mute yourself. Okay, so A plus 1, I'm again repeating, A is your base address of your 0th 2D, and this 0th 2D consists of 6 elements, right? Size of one element is of 24 byte, therefore the size of 6 elements will be 24 byte. So if you are here, if you are at this position A, so there will be a jump of 24 bytes and you will come here at the address 124, and this is nothing but it is the base address of first 2D. Okay, now tell me, what is the answer of star A plus 1? मेरे को पहले बताओ, स्टार A plus 1 तुम बता तो सकते ही नहीं. चलो मैं अनम्यूट ही करता हूँ बिकॉज बट यार जब मैं अनम्यूट करूँगा प्लीज मेक श्योर, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट दैट अगर आवाज आती तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए यार, बिकॉज इट्स नॉट इजी. ओके Sir, 124. Sir, 112. 112. 112. Somebody who said 112 is absolutely correct. Yes, sir. Why? Because see, what is star A? When you talk about the star A definition, so star A is what? Base address of 1D, 0th 1D of 0th 2D. यानी तुम यहाँ पे हो, base address of 0th 1D of 0th 2D. Tell me how many elements this 0th 1D is acquiring? How many elements it is having? 3. Size of one element is 4 byte, size of 3 will be 12 byte. So if you are here, if you write star A plus 1, you will move to the what? You will move to the base address of your first 1D, but of 0th 2D. So this represent what? It represent base address of first 1D, but of 0th 2D. Okay. Now suppose if I write, tell me what is the value of star A plus 1? What will be the answer? 104. It will be 104 because star A की definition क्या है? It is the base address of the 0th element. तुम element के base address पे हो. So when you write plus 1, you move to the base address of the first element of 0th 1D, of 0th 2D. So how will you define this? It is the base address of 0th element of 0th 1D of 0th 2D. Okay. Now if I write triple star A plus 1, 11. Sir, 11. A is 11. modify नहीं होगा. okay guys, tell me, am I going to modify this 10 to 11? Is No, it no. changing? No, sir. No, sir. No, sir. No sir. But I'm plus करना पड़ेगा. Plus करना पड़ेगा. but had it been star A plus plus, तब वैल्यू क्या होती? 11. तब 11. 11 तब Modify तब 11 होती सर. 11 और 45 भी हो जाता. बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल. So can I say that we are now in a position to solve few questions on a 3D array? First, I request you guys to please note it down. I'm giving you 2 minutes of time. Take 2 minutes of time and just note it down. Then we will take again some questions based on 3D array. सर हाँ जी बेटा बोलो. सर a plus 1 का जो हमने 124 लिखा है उसकी डेफिनेशन क्या होगी? It is the base address of first 2D. आंसर जहाँ पे 104 है वो बेस एड्रेस एलिमेंट ऑफ 0th 1D आएगा ना? One star A plus 1 is the base address. Bingo guys, it is the base address of the first element, not 0. सर ये जो 112 है, ये एक और बार एक्सप्लेन कीजिए.
112 सी बेटा देखो मेरे को सबसे पहले टेल मी यू स्पीक विद मी व्हाट इज स्टार ए हाउ विल यू डिफाइन द स्टार ए Sir, it is the base address of 0th 1D of 0th 2D. बिल्कुल ठीक so it means I am talking about this base address of 0th 1D am I right this complete this is the base address of 0th 1D so this tell me this 0th 1D is containing how many element 3. 3 elements 1 2 3 size of one element is 4 byte size of 3 element will be 12 byte so if you are here base address of 0th 1D and if you say +1 it means you move to the base address of first 1D you move to the base address of first 1D of 0th 2D so it will be 112 Okay, sir. ठीक है Yes. कर लिया नोट बेटा सबने Yes, sir. Yes, sir. सर हाँ बोलो बेटा यस सर। सर स्टार A+1 का सर ये मतलब नहीं होगा सर कि A+1 का सर स्टार सर? नहीं बेटा दैट इज टोटली डिफरेंट वो मैं क्वेश्चन दूंगा हम स्टेप बाय स्टेप सारे करेंगे इफ यू पुट अ ब्रैकेट में अगर तुम A+1 लगा देते हो दैट इट मींस यू मूव टू द बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट 2D एंड एक स्टार लगा दिया इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द बेस एड्रेस ऑफ 0th 1D ऑफ फर्स्ट 2D तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है देयर इज अ स्टार ओवर A नॉट ओवर A+1 ओके सर। ठीक है अब हम क्वेश्चन लेंगे स्टेप बाय स्टेप सर ये ए और स्टार ए और डबल स्टार ए बता दो ये तीनों बस ऊपर ऊपर के। पूरा कहानी का क्रक्स ही ये है देख बाबू ए जो है ए है मेरा इस कंप्लीट 0th 2D इसके अंदर दो 2D है 0th 2D फर्स्ट 2D तो ए इज द बेस एड्रेस ऑफ 0th 2D इस पूरे का बेस एड्रेस ठीक है दिस कंप्लीट इस पूरे का बेस एड्रेस है सर और फिर मैं स्टार लगा देता हूं तो मैं इस आउटर सर्कल को ब्रेक करता हूं मैं इस 2D के अंदर घुस जाता हूं और स्टार ए हो जाता है मेरा बेस एड्रेस ऑफ 0th 1D अगर मैं एक और सर, एक स्टार question है, सर। ब्रेक कर देता हूं और अंदर एंटर करता हूं सो इट इज द बेस एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट मैं नया एग्जांपल दूंगा ना इन तीनों का सर 100 ही आएगा। तीनों का 100 आएगा डेफिनेशन वाइज तीनों डिफरेंट है पर न्यूमेरिकल वाइज यार अगर मैं तुमसे पूछूं मेरे को ये बता 0th 2D का बेस एड्रेस कहां से स्टार्ट है 0th 2D का बेस एड्रेस इस पूरे का पूरा ही 100 से अगर मैं तुमसे पूछूं 0th 1D का बेस एड्रेस कहां से स्टार्ट है 100 से अगर मैं तुमसे पूछूं 0th एलिमेंट का बेस एड्रेस कहां से स्टार्ट है 100 से डेफिनेशन वाइज तीनों अलग है अगर उनमें तुम +1 करोगे तो आंसर चेंज होता है तुमने देखा A+1 की वैल्यू 124 आ रही है क्यों आ रही है बिकॉज वो कंप्लीट 0th 2D का बेस एड्रेस था उसमें +1 किया यू मूव टू द बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट 2D अगर तुमसे पूछूं स्टार A+1 तो स्टार ए क्या था दैट इज द बेस एड्रेस ऑफ 0th 1D उसमें +1 किया यू मूव टू द बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट 1D तो उसका आंसर क्या आया 112 आया अब मैं तुमसे पूछता हूं स्टार A+1 सो स्टार A इज बेस एड्रेस ऑफ द 0th एलिमेंट उसमें +1 किया यू मूव टू द बेस एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट तो हम इस तरीके से चलेंगे क्वेश्चंस लेते हैं अभी अगर समझ में भी नहीं आया ना बेटा कोई दिक्कत नहीं है अब जब हम एग्जांपल्स लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं int a 2 2 3 ठीक है यानी मेरे एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए 12 एलिमेंट्स हो गए कोई दिक्कत है इसमें कि मेरे एरे के अंदर 12 एलिमेंट्स हो गए मैं 12 एलिमेंट्स ले देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ठीक है ये 12 एलिमेंट्स हो गए now if I assume that the base address to start with 100 now if I assume that so this is 100 this is 104 this is 106 1110 11 sorry this is 108 112 116 120 124 128 132 136 140 and 144 ठीक है लेट्स ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन बिकॉज उससे चीजें आसान होंगी समझने में दिस इज माय 0th 2D बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को No, sir. ठीक है
and this is my first 2D. राइट फिर एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे लगाई बिकॉज मेरे पास 2 1D है, हर 1D के अंदर 3 एलिमेंट है. दिस इज 0th 1D, दिस इज फर्स्ट 1D. सिमिलरली यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन 0th 1D, first 1D, and each 1D consists of 3 elements: 0 element, first element, second; 0th element, first element, second element; 0th element, first element, second; 0th element, first element, second element. ठीक है, अब हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं. नाउ सपोज फर्स्ट चीज मेरे को क्या करनी है. अगर मैं देखो गाइस तुमसे पूछता हूँ कि टेल मी दैट आई वांट दिस 132. मैं सॉल्व करूंगा, तुम मत सॉल्व करना अभी, पहले हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं तुमसे सॉल्व कराऊंगा. Now I tell you 132 मेरे को फाइंड आउट करना है. How will I reach to this address 132? तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है ये 132 जो है वो कौन सी 2D के अंदर, तो मेरे को बताओ गाइस कौन सी 2D में है. फर्स्ट 2D. First 2D. Write it in a bracket a plus 1. बोलो कोई प्रॉब्लम? No, sir. So when I write a plus 1 का मतलब क्या हो गया? I have moved to the base address of first 2D. ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये वाला फर्स्ट 2D को ब्रेक करके स्टार लगाएंगे सर. to enter to the base address of 0th 1D. So what I will write, I will put a star. अब इसका मतलब क्या हो गया मेरे को ये बता दो. सर 0th 1D की बेस एड्रेस कब है? 0th फर्स्ट 2D. बिल्कुल ठीक बेटा. It means the base address of the 0th 1D of first 2D. ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अब मेरे को कहाँ पे जाना है, मेरे को 132 पे जाना है. क्या मेरे को 0th 1D से एक स्टार आगे और लगाएंगे. एक स्टार और क्या लगा. मेरे को सर एक स्टार पहले सुन लो, क्या मेरे को 0th 1D से आगे मूव करना है फर्स्ट 1D पे या नहीं करना? करना है सर. नहीं करना. करना, मेरे को तो 132 पे जाना है. यस सर. नहीं करना ना, तो मैंने यहाँ पे लगाया +0. ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, अब मेरे को करना क्या है, मेरे को इसके अंदर एलिमेंट के एड्रेस पे जाना है, एलिमेंट के एड्रेस पे जाना है, तो मेरे को करना क्या पड़ेगा? आगे एक को स्टार स्टार लगाएंगे. लगाना एक पड़ेगा. और स्टार लगा दिया. तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया? वैल्यू 0th एलिमेंट 0th एलिमेंट के बेस एड्रेस पे चला गया. दो ही स्टार है. और Value 0th 1D क्या और है? फर्स्ट 2D. So it is the base address of 0th element of 0th 1D of first 2D. बोलो है कि नहीं? यस सर. +2 कर देंगे. ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कितनी स्टेप मूव करना है? +2 2. +2. बिल्कुल, मेरे को 2 स्टेप मूव करना है. अब मैं कहां पे आ गया? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द बेस एड्रेस ऑफ सेकंड एलिमेंट एलिमेंट ऑफ सर ऑफ 0th 1D और फर्स्ट 2D. ऑफ फर्स्ट 2D. तो इसका आंसर क्या आ गया? 132. अब सोचो गाइस, अगर मैं इसको भी ब्रैकेट में बंद करता और यहाँ पे एक स्टार पुटअप करता तो 132 स्टार होता. तो आंसर सर 9 आ जाएगा. तो अब बताओ यहाँ पे कितने स्टार तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? एक स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार स्टार. सर. I told you earlier also that ND array requires n star वैल्यू तक जाने के लिए. बोला था कि नहीं बोला था? यस सर. ठीक है, अब मेरे को दोबारा हम एक चीज आते हैं. अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं, मेरे को ये बताओ स्टार a+1 कैसे एक्सपेंड होगा? कैन आई से इट इज a1? यस सर. और अगर मैं Yes, कहूं +0 का स्टार, अब ये ऐसे हो गया. यस सर. 0. सर ऐसे 0 हो आ गया. जाएगा वापस. मेरे को बताओ अगर मेरे को इसको एक्सपेंड करना है, मैं इसको एक्सपेंड कैसे करूं? कैन आई राइट 0. a10? यस सर. ठीक है, फिर ये हो गया. अब मेरे को इसको भी एक्सपेंड करना है. कैन आई राइट इट लाइक दिस a10? 0 यानी कि फर्स्ट 2D 0th 1D का सेकंड एलिमेंट आंसर क्या आया? 9. 9. तो ये ऐसे हम एक्सपेंड करते हैं. ठीक है, यस सर. आया समझ में? यस सर. चलो अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को पॉइंटर्स के टर्म्स में चाहिए, एरे के टर्म्स में नहीं चाहिए. आई वॉन्ट 11 आंसर. देखो तो 11 आंसर तो मेरे को वैसे बता सकते हो दैट 11 सर इट इज इन द फर्स्ट 2D. तो मैंने लिखा a1 एंड सर 11 इज इन द फर्स्ट 1D ऑफ फर्स्ट 2D. तो मैंने लिखा a11 एंड 11 इज द फर्स्ट एलिमेंट. तो मैंने दिया a11. अब तुमसे कोई पूछे इस 11
को पॉइंटर्स के टर्म्स में बताओ तो आप एक्सपेंड कर दो स्टार a +1, फिर इसको एक्सपेंड करो +1 का होल स्टार, फिर इसको एक्सपेंड करो +1 होल स्टार, सो दिस विल गिव यू 11। अब इसको समझ लेते हैं 11 कैसे आया। देखो, टेल मी हाउ विल यू डिफाइन a +1? a +1 is nothing but it is the base address of first 2D। बोलो है कि नहीं? Yes, sir. If you put a star, it means you move to the base address of 0th 1D of first 2D। बोलो है कि नहीं? Yes, sir. When you write Yes, sir. +1, it means you move to the base address of first 1D of first 2D। ठीक है? Yes, sir. Now if you are putting a star, it means you move to the base address of the 0th element of first 1D of first 2D। बोलो है कि नहीं? Yes, sir. अब तुमने किया Yes, +1, it Plus means one. you move to the base address of the first element of first 1D of first 2D। Yes, sir. अब एक स्टार लगा दिया, Yes, sir. value आ गई। Value आ गई 11। ठीक है, बोलो सर बेटा। सर अगर यहाँ पे जो 140 गेन करना हो तो सर क्या आगे से एक स्टार हटा देंगे? बिल्कुल ठीक बोला तुमने, सुपर्ब यार। अगर मेरे को 140 चाहिए तो मैं ये स्टार हटा दूंगा तो 11 का एड्रेस आ जाएगा 140। ठीक है, अब सोचो अगर यही क्वेश्चन होता, अगर मैं तुमसे पूछता मेरे को आंसर बता बेटा, a 1 1 +1 आंसर क्या आता? 140। बिल्कुल ठीक 140 आता, बिकॉज अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये क्या हो गया, स्टार a +1 का होल स्टार और सिर्फ +1 है। अब अगर यहाँ पे स्टार होता तो प्रॉब्लम नहीं आती, पर यहाँ पे स्टार नहीं है तो ये क्या करेगा, ये देगा 140। अब सोचो 11 मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, मगर मेरे को अगर 11 आंसर चाहिए, देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच यू कैन गेट द 11 एज ए आंसर। सो आई कैन राइट दिस थर्ड स्टेटमेंट। मैं थर्ड स्टेटमेंट को ऐसे लिख देता, दैट 1 1 +1 का होल स्टार। क्या प्रॉब्लम थी? ये आंसर मेरे को क्या देता, 11। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a 1 1 1, ये भी मेरे को क्या देगा, 11 ही देगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टार a +1 का होल स्टार +1 का होल स्टार, ये भी मेरे को क्या देगा, 11 ही देगा। 11। बोलो नो सर। जिसको भी डाउट है, देखो बेटा बड़े भाई की तरह समझो यार, डाउट है ना पूछो। सर हाँ बोलो। अब अगर तुम ये बोलोगे कि सर मेरे को 1D नहीं आती, मेरे को एरे नहीं आता, तो प्रॉब्लम है, तो मेरे को तुम्हें बिल्कुल स्टार्टिंग से 1 घंटे पहले पढ़ाना पड़ेगा। पर हाँ, इस 3D के अंदर किसी को कोई डाउट आ रहा है वो मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज डाउट आ रहा है सर। जिनको एरे नहीं समझ में आया, मैं सैटरडे को क्लास लूंगा। बोलो बेटा क्या डाउट है? सर ये आपने लेफ्ट साइड वाले की समझ में आया सर, 132 की इक्वल टू सर ये समझ में आया 132। चलो हम इसको दोबारा करते हैं कि मेरे को अगर 132 आंसर चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। देखो मेरे को चाहिए 132। अब आप मेरे साथ साथ ही बोलना मैं क्या करूं, ठीक है? ये मेरे को चाहिए आंसर 132, यही बोलना है ना तुमने कि तुम्हें 132 चाहिए, ठीक है? अब बेटा मेरे को ये बता दो, सबसे पहले जिसने क्वेश्चन पूछा बस वही बोलेगा। मेरे को ये बताओ, ये 132 जो है कौन सी 2D में है? क्या ये 0th 2D में है या क्या ये फर्स्ट 2D में? बोलो बाबा, जिसने क्वेश्चन पूछा था वो मुझसे बोलो, ये 0th 2D में है या फर्स्ट 2D में है? फर्स्ट 2D सर 0th फर्स्ट। देखो बेटा 0th 2D तो ये है, 0th 2D, ठीक है? दिस कंप्लीट इज 0th 2D एंड दिस इज योर फर्स्ट 2D, ठीक है? और ये 132 तुम्हें 0th 2D में दिखाई देता है या फर्स्ट 2D में दिखाई देता है? फर्स्ट 2D में। फर्स्ट 2D। तो सबसे पहले मेरे को फर्स्ट 2D तक जाना पड़ेगा, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया a +1। तो a मेरा डिनोट करता है 0th 2D, उसमें +1 करके ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब मैं कहां पे आ गया बेटा, मैं आ गया फर्स्ट 2D पे, ठीक है? अब मेरे को क्या करना है, इस फर्स्ट 2D को ब्रेक करके उसके अंदर जो 1D है उसके अंदर एंटर करना है। तो मेरे को बेटा ये बता, ये जो 132 है फर्स्ट 2D के 0th 1D में है या फर्स्ट 1D में है? 0th 1D में सर।
बिल्कुल 0th वनडी में। तो मैं इस सर्कल को तोड़ूंगा कैसे? एक स्टार लगा दूंगा, ठीक है। सो व्हेन आई राइट स्टार a+1, इसका मतलब क्या हो गया, मैं आ गया अब बेस एड्रेस ऑफ 0th वनडी पे आ गया, ठीक है। अब मैं पहुंच गया यहाँ पे, ये मेरा a+1 है और ये जो सर्कल दिख रहा है ये मेरा स्टार a+1 है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अब एलिमेंट के एड्रेस पे आना है कि नहीं आना? यस सर। मेरे को यहाँ से आगे तो मूव नहीं करना ना, नो सर। 0 से 1 पे। तो अगर मेरे को यहीं पे रहना है तो मैंने लगाया +0, मेरे को क्योंकि यहीं पे रहना है। अब मेरे को इसको तोड़ के भी एलिमेंट के एड्रेस पे जाना है, तो मैं एलिमेंट के एड्रेस पे क्या कैसे जाऊंगा? मैं एक और स्टार लगा दूंगा, ये मेरा हो गया स्टार स्टार है, मैंने यहाँ पे एक और स्टार लगा दिया। तो अब ये क्या हो गया, इट इज द बेस एड्रेस ऑफ द 0th एलिमेंट ऑफ 0th 1D ऑफ फर्स्ट 2D। अब इसका मतलब ये हो गया। अब मेरे को ये बता बेटा, मेरे को कितनी स्टेप मूव करना है? सर 3 स्टेप्स। 3 स्टेप नहीं, 1 2 3 ऐसे मत काउंट करो। इसके बाद कितनी स्टेप है? 1 स्टेप, 2 स्टेप। 2 स्टेप पे मैं 132 पे पहुंच जाऊंगा, तो मैंने लगाया +2 और ये आंसर मेरा आ गया 132। और अगर मैं इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देता, एंड इफ आई पुट अ स्टार, देन दिस विल गिव यू द 132 की वैल्यू व्हिच इज 9। तो ये आता 9। ओके सर। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आई एम गिविंग यू 15 क्वेश्चंस एंड गिविंग यू 15 मिनट ऑफ टाइम, ठीक है। यू गाइस हैव टू टेल मी द आंसर वन बाय वन। एक सेकंड रुको। ओके ठीक है। अज्यूमिंग दैट द बेस एड्रेस स्टार्ट्स विद 100। अब वर्ड लाइंस वगैरह तुम खुद करोगे, वो मैं नहीं दे रहा तुम्हें। और जो भी मैं लिख रहा हूं उसको सिर्फ एक ही प्रोग्राम का पार्ट मानना, अगर कोई मॉडिफिकेशन हो तो एरे के अंदर मॉडिफिकेशन कर लेना। सर 10 ही क्वेश्चन दीजिए ना सर। एक सेकंड रुको बेटा। सर जनरली एरे के एलिमेंट्स को लिखने का सिंटैक्स यही होता है या कॉमा भी लगाते हैं हम? कॉमा लगाते हैं बेटा, कॉमा आएगा इनके बीच में। ओके सर। बेटा साथ साथ क्वेश्चन नोट कर जाए, हो सकता है बीच में स्क्रीन गायब हो जाए तो मेरे को दोबारा क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे मैंने क्या लिखा।
सर ये 8th क्वेश्चन में क्या लिखा है 101010 8 में है एड्रेस स्टार एड्रेस A000 ऑल आर जीरोस. ठीक ओके ओके सर You have 15 minutes. मैं तुम सबको म्यूट कर रहा हूँ. ठीक है. Note down the question, think, and then we'll discuss. यार शिट स्क्रीन चली गई. जो कहा था वही हुआ. आई गेस तुम लोगों ने क्वेश्चंस नोट तो कर लिए होंगे. सर 12 तक नहीं नोट्स किए सर मैंने 12 तक नोट सर किए थे सर एक मिनट रुको, मेरे को बोलने तो दो. बेटा देखो, जिसने 12 तक नोट की थी, पर जिसने अगर 15 तक नोट किए हैं, ठीक है, वो प्लीज फोटो क्लिक करके चैट बॉक्स में डाल दीजिए. जिसने भी किया है. नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप 12 तक सॉल्व करो. भाई ग्रुप पे डाल दिया. चैट बॉक्स में डाल देना बेटा, अगर जिसने सारे क्वेश्चन नोट किए हैं तो. थैंक्स आयुष.
सर बोल बेटा, बोलो दिवाकर, सर एक क्वेश्चन है सर। बोलो। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन में से फर्स्ट प्लस प्लस स्टार्ट ये बता दिवाकर बेटा, थोड़ा लेट ज्वाइन किया था आपने, मतलब इन द सेंस कोडिंग की पहले वाली क्लासेस अटेंड नहीं करी हुई? सर जो पहले कल की क्लासेस ओके, बिकॉज प्लस प्लस मैंने आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये बेसिकली आपका ऑपरेटर होता है जिसको मैं कहता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आप अगर देखो कहीं पे लिखा होता है आई प्लस प्लस या ओके सर वो समझ रहा हूँ सर उसको। ये बेसिकली बराबर होता है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 के। यस सर। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू को मॉडिफाई करता है। आप आई प्लस 1 करते हो, फिर उसको असाइन करते हो आई के अंदर, तो आई की वैल्यू चेंज हो जाती है। पर ये प्लस प्लस जो है आप किसी कांस्टेंट पे नहीं लगा सकते। यू कैन नॉट राइट प्लस प्लस 5, ये एरर है। आप कभी भी इसको एड्रेसेस पे नहीं लगा सकते, दिस विल गिव यू एरर। एड्रेस पे कभी नहीं लगता है, बिकॉज एड्रेस आप कभी मॉडिफाई नहीं करते। तो आपको ये सोचना है कि जो मैंने क्वेश्चन दिया है, इज इट टॉकिंग अबाउट एन एड्रेस और इज इट टॉकिंग अबाउट अ वैल्यू, दैट यू हैव टू डिसाइड। ओके सर। और अगर बेटा दिवाकर कोई भी प्रॉब्लम है ना, जैसे आ रही हो प्रॉब्लम, तो हम सैटरडेज को 2 घंटे की क्लास करेंगे। ठीक है, उसमें लाइक आई विल बी स्टार्टिंग से तो बिल्कुल नहीं, बट हाँ फॉर इफ एल्स एंड देन आई विल टेक एरेज एंड पॉइंटर्स। तो 2 घंटे मैं में 25 नंबर से ज्वाइन किया था सर मैंने। कोई बात नहीं बेटा, तो हम पहले वाला पोर्शन जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ज्यादा टेंशन नहीं, हमारे पास बहुत टाइम पड़ा है। दिस कोडिंग जो है इसका कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं होने वाला, बट स्टिल इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, आपको अच्छा कोडर ही बनना है। यस सर। फाइव मोर मिनट, उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अदरवाइज टाइम चला जाएगा। सर बेस एड्रेस क्या होता है सर? बेस एड्रेस वो होता है बेटा जहां पे आपकी एरे स्टोर्ड होती है या एलिमेंट। जैसे जैसे मैं आपको लिखता हूं, सपोज मैंने अगर कोई वेरिएबल दिया इंट आई, मान लो मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं, तो होता क्या है बैकग्राउंड में कि उसको एक स्पेस क्रिएट होता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, ये स्पेस उसको मिलता है, और ये स्पेस जो मिलता है ये किसी एड्रेस पे मिलता है जहां पे वो वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होती है। तो मैं लिखता हूं आई जो है 100 इज योर एड्रेस, दिस इज योर एड्रेस। ठीक है, तो हर एक चीज जो मैं लिखता हूं वो किसी ना किसी एड्रेस पे स्टोर होती है। तो ये जो होता है इसको मैं कहता हूं एड्रेस। ठीक है, जैसे इस आई का एड्रेस क्या है 100, वैसे ये एरे भी जहां कहीं ना कहीं स्टोर है, तो जहां पे ये स्टोर है उसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 100, तो मैं इसको कहता हूं ये मेरा बेस एड्रेस है। ओके सर। दोबारा पढ़ा दूंगा दिमाग, जो भी जिनको भी डाउट है ना सैटरडेज को।
सर हाँ बेटा बोलो। सर लिखवाया था कि बोलो। सर आपने 3D में लिखवाया था स्टार ए का मतलब 0th 1D का सर 0th 2D सर। बिल्कुल। सर ये तो सर 2D है सर, स्टार ए 01। अब तुम सोचो, वो मैं सॉल्व कराऊंगा, तुम सोचो क्या लिखा है मैंने, मेरे को नहीं मालूम। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और सारा एक्सप्लेन करूंगा, पर बीच में नहीं। यू गाइस सॉल्व अवे, जो तुम्हें समझ में आता है उसके अकॉर्डिंग करो। सर सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार ये 8 to 9 समझा देना एक बार। मेरे सामने तो क्वेश्चन है ही नहीं, सब कुछ जा चुके हैं। मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा बेटा, सारे। मैं 3 मिनट्स मोर, 3 मिनट के बाद मैं 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एंड वाला सर बताया था आपने, एंड ऑपरेटर। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है? अभी 3 मिनट और। ओके, सो वन बाय वन। कुणाल, तुम मेरे को ना एक एक क्वेश्चन बताना, क्या क्वेश्चन था, हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। बाकी कोई नहीं बोलेगा, ओनली वन पर्सन विल टेल मी स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, देन विल सॉल्व, देन विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। हाँ कुणाल, स्टार्टिंग से बोलते जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? प्लस प्लस स्टार ए प्लस प्लस स्टार ए A01 मतलब इस तरीके से ए ब्रैकेट और 1 ब्रैकेट। ऐसे था ना? अब Yes, sir. सबसे पहले हमें ये चेक करना है बेटा कि इस लाइन का मतलब क्या हुआ। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इट इज
A 0 1 is equal to star A 0 1 plus 1. क्या ये लाइन जो मैंने लिखी सबको समझ में आई? अगर मैं इफ आई कंसिडर दिस एज अ वेरिएबल, अगर ये मेरा पूरा वेरिएबल है, कैन आई राइट इट लाइक दिस? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, अब ये जो चीज हो गई, व्हाट इज दिस थिंग? दिस थिंग इज बेसिकली स्टार ए प्लस 0 प्लस 1 का होल स्टार। ठीक है, और एक और स्टार, ये हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, और यही मैं पूरा का पूरा एक्सपेंड करूं जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए समझने में। इट इज स्टार ए प्लस 0 प्लस 1 और यहाँ पे है प्लस 1। ठीक है, अब ये देखो, a plus 0 is the base address of 0th 2D. When you put a star, मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ जिससे थोड़ा इजी हो समझना। यहाँ पे मेरे पास 2D है, हर 2D के अंदर 2 1D, यानी आफ्टर 40 मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये मेरा 0th 2D हुआ एंड दिस इज माय फर्स्ट 2D। ठीक है, फिर एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, ये मेरा 0th 1D है एंड दिस इज माय फर्स्ट 1D। Similarly, this is my 0th 1D and this is my first 1D. बोलो कोई दिक्कत अभी? नो सर। लिखा a plus 0 is base address of 0th 2D. When you put a star, you move to the base address of 0th 1D. When you write plus 1, you move to the base address of first 1D. When you put one more star, you move to the base address of the 0th element. When you put one more star, you reach to the value 30. 30 प्लस 1 किया, ये वैल्यू कितनी हो गई मेरी? 31 हो गई। अभी 31 मैं किसको असाइन कर रहा हूं? इसको असाइन कर रहा हूं। 30 की जगह पे मेरा क्या आ गया? ये वैल्यू कितनी हो गई? 31। तो अब मेरे को इसका आंसर तो 31 आएगा, पर मेरा एक्चुअल डेटा भी चेंज हो चुका है, 30 की जगह पे 31 हो चुका है। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। तो फर्स्ट का आंसर आया 31, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे 3 स्टार है। 3 स्टार मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दी वैल्यू। वैल्यू पे मैं पहुंच चुका हूं, वैल्यू में प्लस प्लस कर रहा हूं, तो 30 जगह पे आ गया 31। कुणाल सेकंड क्वेश्चन बताना क्या था? सर प्लस प्लस ए 0 0। प्लस प्लस ए। अच्छा मेरे को बताओ, ये ए 0 0 वैल्यू है या एड्रेस है? एड्रेस है सर। एड्रेस लगा सकते हो? तो एरर है सर। एरर आएगा, एरर। बिल्कुल ठीक, एरर आएगा। थर्ड बताना बेटा कुणाल। प्लस प्लस स्टार स्टार ए। प्लस स्टार स्टार ए एरर है सर। वैल्यू है या एड्रेस? एड्रेस। एड्रेस, तो एड्रेस में मैं प्लस प्लस नहीं लगा सकता, तो ये भी एरर हो गई। फोर्थ क्वेश्चन बोलना। प्लस प्लस स्टार 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 ए। 11 यानी कि इस लाइन का मतलब क्या हो गया? इस लाइन का मतलब हो गया स्टार 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 ए इज इक्वल टू स्टार 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 ए प्लस 1। ये वैल्यू 10 है, 10 प्लस 1 11 हो गई। ये 11 मैंने फिर से यहाँ पे इसको असाइन कर दिया, तो ये 10 वैल्यू एक्चुअली में मॉडिफाई होके कितनी हो चुकी है? 11। आंसर क्या आ गया इसका? 11। फिफ्थ क्वेश्चन बोलना। एक सेकंड में स्क्रीन को नीचे कर देता हूँ। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन बोलना बेटा। स्टार 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 ब्रैकेट में ए प्लस 1 ब्रैकेट में ए प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। मतलब ऐसे? यस सर। तो अभी बताओ स्टार स्टार ए प्लस 1 क्या हुआ? 120। बिल्कुल ठीक, बिंगो यार, 120 इज द करेक्ट आंसर। a plus 1 is what? Base address. A plus 1 is base address of first 2D. When you put a star, you move to the base address of 0th 1D. When you put one more star, you reach to the base address of the 0th element. तुम element के base address पे आगे plus 1 किया तो base address of first element, and the base address of first element is 120. This is the answer. Sixth question बोलना। स्टार 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 ब्रैकेट आएगा ए प्लस 1 ब्रैकेट ए प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3। तो ये स्टार 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 ए प्लस 1 क्या है मेरा? वैल्यू है सर 53 आ जाएगा। 53 आएगा।
सो 50 प्लस 3 कितना हो गया? 53 हो गया। और क्या मैं ये एक्चुअल डेटा मॉडिफाई कर रहा हूँ? नो सर। नहीं कर रहा। नो सर। 53 रहेगा और एक्चुअल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुई। 7th क्वेश्चन बताना सर इसको एक बार दोबारा से बता दीजिए ना, ये पीछे वाले 6 नंबर। बिल्कुल। 6 में a+1 इज व्हाट? a+1 इज बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट 2D। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम? नो सर। When you put a star, you are doing what? You are reaching to the base address of the 2D. ठीक है? When you put one more star, it means you are talking about the base address of the 0th 1D, base address of the 0th element of 0th 1D of first 2D. एक और स्टार लगाया, वैल्यू कितनी आ गई? 50। 50 प्लस 3 कितना हो गया? 53। तो 3 स्टार है, को 3D में 3 स्टार ही चाहिए वैल्यू तक जाने के लिए। 4 स्टार में एरर हो जाती है। नेक्स्ट बताना। स्टार ब्रैकेट ओपन, स्टार ब्रैकेट ओपन, A11 प्लस 0 प्लस 0 0 सर 70 आएगा 70। क्या हो गया? ये कुछ नहीं है, ये 1 0 हो गया। यानी फर्स्ट 2D का फर्स्ट 1D का 0th एलिमेंट व्हिच इज 70। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक बार इरेज करके देखता हूँ अगर मेरा इरेजर काम कर रहा है तो। सर। हाँ जी सर 5th को 120 कैसे आया है? 5th तो मैंने हटा दिया शायद। सर क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ। एक सेकंड बेटा, बस 1 मिनट में इसको इरेज कर दो, फिर हम लेते हैं हम क्वेश्चंस को। हाँ बोल बेटा, 5th क्वेश्चन बोल। 1 सेकेंड। हाँ जी बोलिए 5th क्वेश्चन। सर स्टार 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 ब्रैकेट में a+1 a+1 +1। अच्छा अब मेरे को ये बता बेटा, a+1 की डेफिनेशन क्या हुई? बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट 2D। कोई डाउट? नो सर। When you put one more star, it means you move to the base address of your 0th 1D of first 2D. बोलो कोई doubt? नो सर। It means I'm talking about the base address of the 0th element of 0th 1D of first 2D. बोलो कोई doubt? नो सर। +1 क्या base address of the first element आ गया 120। सर फिर जो भी 7 क्वेश्चन में 70 आंसर है उसमें भी तो सेम चीज ही हुई, बस उसमें 1 स्टार एक्स्ट्रा लगे तो वैल्यू पे आ गया डायरेक्ट, तो उसमें भी तो 70 आ रहा है। फिर उसमें 70 आ रहा है सर, उसमें भी तो सेम ही चीज हो रही है, उसमें +0 हो रहा है, 1 स्टार एक्स्ट्रा। इसमें डबल स्टार किस पे लगा हुआ है? यू आर पुटिंग ए डबल स्टार ऑन a+1। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, देखो मैं इसको कंप्लीट एक्सपेंड करता हूं। इट इज स्टार a+1 फिर +1 का होल स्टार फिर +0 का होल स्टार, यही हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ? a+1 क्या है? बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट 2D। व्हेन यू पुट अ स्टार यू मूव टू द बेस एड्रेस ऑफ 0th 1D। अब तुम बेस एड्रेस ऑफ 0th 1D में +1 कर रहे हो, सो यू मूव टू द बेस एड्रेस ऑफ फर्स्ट 1D। गॉट इट? सर ठीक है, यानी वो एक a+1 पे 2 स्टार है और इसमें होल पे स्टार है। बिल्कुल ठीक, इस पे a+1 पे 2 स्टार है और यहाँ पे ऐसे है, इट इज a11। ओके सर। ठीक है, हाँ जी बोलो बेटा। सर ये मुझे सर एक्सपेंड करना समझ में नहीं आया सर। एक्सपेंड करना देखो कुछ नहीं है, a ऑफ i जो होता है ना वो बराबर होता है स्टार a+i के। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं कहूं तुम्हें aij किसके बराबर होगा? तो पहले तो हम ai को एक्सपेंड करते हैं, ये हो गया स्टार a+i। अब ये हो गया यहाँ पे j, ऐसे हो गया। तो अगर मैं तुम्हें बोलता हूं तुम इसको x मानो, तो ये क्या हो गया? xj हो गया। xj क्या हो गया? स्टार x+j हो गया। x की वैल्यू क्या है? स्टार a+i है, तो ये j, तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया।
वैसे ही अगर 3D एरे होता, अगर मैं लिखता A I J K होता, तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते ही होता स्टार A प्लस आई, फिर इसको एक्सपेंड करते प्लस J लगाता, फिर होल स्टार लगाता, फिर इसको एक्सपेंड करता प्लस K लगाता, फिर होल स्टार लगाता। ठीक है, ये मतलब है। ओके सर। ये मैं फिर से एक बार इरेज करता हूँ इसको, अगर इरेज होता है तो। कितने क्वेश्चन बचे हैं आप लोगों के? सर 8 क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, विल टेक दैट इन मे बी आज कल एप्टीट्यूड का लेक्चर होगा शायद, यस सर। तो कल मैं एप्टी ही कराऊंगा। सर कोडिंग सर कल कोडिंग की क्लास है सर, कल कोडिंग है है सर। कोई बात नहीं, कल कोडिंग की क्लास है, ये बाकी के एग्जांपल लेके देन आई विल टेक एप्टीट्यूड। हाँ, क्योंकि सर आपने कोडिंग वाले एप्टीट्यूड वाले सेकंड क्लास में आपने कोडिंग कराई थी। हाँ, वो मेरे को खुद को नहीं पता मैं कब क्या करवाऊंगा, वो मिक्सअप ही रहने वाला है। ठीक है, बिकॉज दोनों को मैं सेपरेट चैनल में चलेगी ना सर? नहीं बेटा, एप्टी की क्लास एप्टी में चलेगी, कोडिंग की क्लास कोडिंग चैनल में चलेगी। जहां पे टाइम टेबल में एप्टी है वो एप्टी की चैनल में, जहां पे कोडिंग है वो कोडिंग के चैनल में। ठीक है, तो सर कल तो कोडिंग की क्लास है ना? तो कोई बात नहीं, कोडिंग की क्लास में पढ़ाने वाला तो मैं ही हूं ना, तो मैं कोडिंग भी पढ़ा सकता हूँ, एप्टी भी पढ़ा सकता हूँ। ओके, जो मन होगा पढ़ा दूंगा। ओके सर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना? बोर तो नहीं हो? नहीं सर। थैंक यू सर। नो सर। ओके बेटा। सर कल 5D पढ़ाओगे? नहीं, कल मैं